भगवद गीता का अध्याय 9 श्लोक 11 से 20 तक। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीतनुमाश्रितम पर भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम मोभाषा मोभ कर्माणो मोभ ज्ञाना विचेत्स राक्षसी मासुरी चैव प्रकृतिन मोहिनीश्रिता महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते नियमनसो ज्ञात्वा भूतादिम व्ययम सततम कीर्तिन्तो मां यतन्तिश्च द्रिवृता नमस्यन्तिश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते ज्ञानेज्ञेन चापिने यजन्तो मामुपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम अहम क्रतुर्हम यज्ञ स्वधामहमौषधम हुतम पितामस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभो साक्षी निवास शरण सुहृत प्रभव प्रलय स्थान निधान बीजमव्ययम् तपाय हम वर्ष निगृहनाम्युत सृजामि च अमृत चैव मृत्युश्च सत्सच्चामर्जुन त्रैविद्या मां सोमपा पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमा सादे सुरेंद्रलोक मशनन्ति दिव्यादिवी देवभोगा। Bhagavad Gita, Chapter 9, verses from 11 to 20. Not knowing my supreme nature, fools deride me, the overlord of the entire creation, who have assumed the human form. That is to say, they take me, who have appeared in human form through my Yogame, for deliverance of the world, as an ordinary mortal. Those bewildered persons with vain hopes, futile actions and fruitless knowledge, have embraced a fiendish, demoniacal and delusive nature. On the other hand, Arjuna, great souls who have adopted the divine nature, knowing me as the prime source of all beings and the imperishable eternal, worship me constantly with one-pointedness of mind. Constantly chanting my names and glories and striving for my realization, and bowing again and again to me, those devotees of firm resolve, ever united with me through meditation, worship me with single-minded devotion. Others, who follow the path of knowledge, betake themselves to me through yajna of knowledge, worshipping me in my absolute, formless aspect as one with themselves, while still others worship me in my universal form in many ways, taking me to be diverse in manifold celestial forms. I am the Vedic ritual, I am the sacrifice, I am the offering to the departed, I am the herbage and food grains, I am the sacred mantra, I am the clarified butter, I am the sacred fire, and I am verily the act of offering oblations into the fire. I am the sustainer and ruler of this universe, its father, mother and grandfather, the one worth knowing, the purifier, the sacred syllable Om, and the three Vedas Rig, Yajur and Sama. I am the supreme goal, sustainer, Lord, witness, abode, refuge, well-wisher seeking no return, origin and end, resting place, storehouse to which all beings return at the time of universal destruction, and the imperishable seed. I radiate heat as the sun, and hold back as well as send forth showers, Arjuna. I am immortality as well as death, even so, I am being and also non-being. Those who perform action with some interested motive as laid down in these three Vedas and drink the sap of the Soma plant, and have thus been purged of sin, worshipping me through sacrifices, seek access to heaven. Attaining Indra's paradise as the result of their virtuous deeds, they enjoy the celestial pleasures of gods in heaven. मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योगमाया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त ज्ञानीजन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्माजन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, धृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला, पिता, माता, पितामह, जानने योग्य, पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकौम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। इससे आगे के श्लोक अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।